Topic is quite hot. Nepotism, first of all, it's there everywhere. A chairman in a corporate, will definitely will not give his chair to the best of the guy in the office. He'll always give it to his son or the daughter. A Seth in a jewelry shop will not give his galla to his salesman, who's working behind the counter. Maybe he must be as honest as Shri Harshchandra, but he will not give that counter to him. But still, that should not stop us from, seeing dream. That should not stop us from having a big dream. What we should do, we should really be prepared with skill and the craft. We should really work very hard on ourselves, not taking any day for granted, anything for granted. Then only you can fight against it. This is going to be there, always. It will always be faced by the newcomers, let me tell you. Okay? So, you can only fight it with your own skill, with your own craft, with your own hard work. And definitely this, yes, well, it is all right that they get the chance very easily. They get the second chance very easily. They get the third chance, fourth chance very easily. But that doesn't, make it sure that they will always be getting chances. So who will get the chance? The person who will be very, very lucky, and the person who will be prepared with all, who will have the skill, will have the craft. You are friends with Karan and Kangana. Nepotism में आपका क्या ख्याल है जो बॉलीवुड में चल रहा है? नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है? भाई भतीजावाद. हाँ. Well, I feel that's a very natural human emotion. You're asking me in general, na? Not specifically to that issue. If you want to give your opinion on that also. नहीं तो आप specific question पूछिए. In general, I think it's a very normal human nature to try and help people who you love and who you care for. It's a very natural thing. It doesn't have to be someone who's part of your family. It can be someone who you care for. So that's a very natural emotion. I try and make sure that in my work, I don't try not to allow that to interfere, because I think that मेरी जो जिम्मेदारी है as a creative person वो अपनी audience की तरफ है, और उसको मैं सबसे ज़्यादा अहमियत देता हूँ. तो I try not to bring in emotions in my work. कंगना रनौत ने हाल ही में कहा कि करण जो है सिर्फ और सिर्फ स्टार किड को लॉन्च करते हैं, तो आप क्या मानते हैं? आपने उनके साथ में काम भी किया है. उन्होंने अब तक किस को लॉन्च किया है? सिर्फ स्टार किड्स ही है ना? हाँ. तो वो आरोप थोड़ी है, वो तो सच है. उन्होंने सच बात बोली. बट करण ने बहुत सारे डायरेक्टर्स को भी लॉन्च किया है, जो जैसे शशांक खेतान, जो मेरे बहुत ही क्लोज मित्र है. ही इज फ्रॉम नासिक. उनका कोई लेना देना नहीं था फिल्म इंडस्ट्री से. ही वाज जस्ट अ बॉय हु केम विद अ ड्रीम. उन्होंने स्क्रिप्ट दी, करण को पसंद आई, एंड करण सेड आई बिलीव इन दिस बॉय, लेट्स डू इट. एंड उन्होंने फिल्म बनाई. बट एक बात, करण ने गिप्पी फिल्म बनाई थी. He launched a girl in that film. Right. Correct. जो चिंकी ने डायरेक्ट की थी. गिप्पी. He did. And Siddharth. Okay. And सिद्धार्थ थोड़ी ना इंडस्ट्री से भाई. शकुन भी नहीं है. But to a fair extent, what she's saying is right. I think this whole matter has just got blown up. I think she was just trying to get a point across. वो अपने तरीके से कुछ बोलना चाहती थी, और फिर लोगों ने बहुत खींच टान लिया. It's cool. होता रहता है. It's like I said, I think हम लोग एक fraternity है. वो तो मुझसे अभी आदित्य पंचोली के बारे में भी पूछते हैं. जब मैं 16 साल की थी और आज मैं 30 साल की हूँ, तो क्या करें? पूछेंगे तो कहाँ जाएं? जवाब दे तब भी प्रॉब्लम है, नहीं दे तो मैं उनमें से नहीं हूँ जो जो गोल मोल. आप मुझसे हमेशा पूछेंगे तो मैं हमेशा जवाब दूंगी. मुझे नहीं लगता कि मैं क्या कहूँ अगर मैं ना कहूँ, और अगर ना कहूँ तो क्या कहूँ, ये मुझे समझ नहीं आता है. तो आप ऐसा करिए, मुझे बुलाया ही मत करिए कहीं भी इंटरव्यूज पे, तो सब शांत रहेंगे और सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. नेपोटिज्म का वो पेपर कल है, आज का सिलेबस अलग है.
Yes, Atiya, you have a question. No, in all seriousness, I would like to answer that because what happens is it'll just get misconstrued as a joke. It's something that's gone on for too long. हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी चीज़ों के लिए जानी जाती है. एक चीज़ की वजह से क्या बाद का पतंग और बन के वो रबर की तरह खिंच चुकी है. आई थिंक वी शुड ऑल मूव अहेड. ये नेपोटिज्म का सवाल मैंने हाफ गर्लफ्रेंड के दौरान भी जवाब दे चुका हूँ. आप मेरे कोई भी इंटरव्यू उठा के पढ़ सकते हैं. हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ हम ऑडियंस के लिए पिक्चर बनाते हैं. एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस डिसाइड करती है वो हमें बार बार देखना चाहती है या नहीं देखना चाहती. तो कोई भी यहाँ पे किसी के वजह से आ जरूर सकता है लेकिन टिक नहीं सकता. वो टिकता अपने बलबूते पे अपने काम के नतीजे से है और उस वजह से. So I think all of y'all also responsibly now should move ahead and find important and relevant things and the good things that the film industry is known for also, and not just one element that gives you headlines. हमारे पास बहुत कुछ अच्छी चीजें जो हो रही है फिल्म इंडस्ट्री. लेकिन आजकल बहुत कम मौके होते हैं जो न्यू कमर्स को मिलते हैं कि ज़्यादातर यू नो कि जो इंडस्ट्री के अंदर से ही जो टैलेंट आता है वो बहुत ही आसानी से उन्हें मौके मिलते हैं. ये कहने की बात है. ये पहले भी होता था, आज भी हो रहा है, आगे भी होगा. अगर जो अल्टीमेटली किसी का टिकना, किसी का ठहरना, किसी का आगे बढ़ना पूरे देश की जनता के ऊपर निर्भर करेगा, न ऑडियंस के ऊपर. कटिंग अक्रॉस द स्टेट्स, सिर्फ बिहार से और यूपी से होने से नहीं काम चलेगा. पूरे देश के लोगों को अगर पसंद आएगा. आपने कितने स्टार सन्स को, फिल्म मेकर सन्स को देखा है जो आए हैं, बहुत अच्छा किया है, और कई लोगों ने अच्छा नहीं भी किया है जो आए और उसके बाद फ्राइडे नाइट के बाद गायब भी हो गए. अल्टीमेटली उसको फ्राइडे नाइट के बाद जो है वो ऑडियंस ही उसका फैसला करती है. इसलिए अगर बुरा नहीं है, अगर हमारे घर से हमारे बच्चे अगर आ रहे हैं इसमें जिनके अंदर एप्टीट्यूड है, टैलेंट है, तो उनको रोकने का हमारा कोई हक नहीं बनता है. पर इसका मतलब ये नहीं कि जो बाहर से अच्छे लड़के आ रहे हैं हम उनके कॉस्ट पे, उनकी कीमत पे ऐसा कर रहे हैं. ऐसा नहीं है. बाहर के भी साथ आते हैं, हमारे घर के भी आते हैं, लेकिन वो मेहनत करके उनका टैलेंट क्या है, उनके अंदर जुनून क्या है, पैशन क्या है, वो रिजल्ट क्या दे रहे हैं और वो ऑडियंस कैसे एक्सेप्ट कर रही है, इन सारी चीज़ों को मिला कर चल रहा है और चलता रहेगा. अनुपम सर हियर. यस सर. सर सबसे पहले तो ट्रेलर देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है. थैंक यू. सेकेंडली आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि सर इस फिल्म में जो यंग टैलेंट है उनको मौका दिया गया है, तो आपको क्या लगता है आपके हिसाब से, क्योंकि हम लोग सुनते हैं बॉलीवुड के बारे में कि नेपोटिज्म है या दुनिया भर की चीजें. मैं इसी का रोहित यू आर राइट. नहीं सर मतलब कंट्रोवर्शियल सवाल नहीं, मैं बस ये जानना चाहता हूँ. नहीं बताइए. अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है इस इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए एक सर मैं जीता जागता उदाहरण हूँ. That if you work hard, my grandfather used to say, if you work hard and you're honest, you will always get your destination. I came to this city with 37 rupees, and today I am the producer of this film. और क्या चाहिए? मेहनत काम आती है हमेशा. मैंने रोहित की कहानी सुनी इनसे जब मैंने इनके साथ शो किया. From where we've reached. भट्ट साहब की फिल्म अर्थ नई हिट हुई थी. अभी 30 रुपए दिए तो तुमको वापस जाने के लिए. भट्ट साहब अच्छा आज इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए. वापस जाने के पैसे नहीं थे, बिना पूछे पैसे, बिना ये एयरपोर्ट पे छोड़ने आया था. मैं समझ गया इसकी खामोशी से कि ये सोच रहा है वापस कैसे जाऊंगा. तो मैंने जाते जाते उसको 30 रुपए दिए थे, जिसका जिक्र नहीं करता. अभी वो पैसे जो देता गिनवाता है मेरे को. हैं बात करो. भट्ट साहब को मैंने सारांश के बाद कम से कम जब 450 फिल्में कर दी, हर फिल्म के बाद पैसे दिए. बट आई थिंक वो 30 रुपए जो हैं वो खजाना था मेरे लिए, टू गो बैक टू वेयर इट इज. So I think that people need to work hard, and that's all what is important. The debate that has been going on in the industry is about the nepotism that is in the industry. Both of you are not from the filmy background. So have you guys faced it when you were starting out? I think I just answered this question only yesterday when I said that almost all the films that I've done and all the films that I'm doing in the next 1.5 years, these are the films that I really wanted to do. Out of many options, I had this luxury of choosing these films. So from a personal point of view, I cannot complain. But having said that, it is not there. It is not that it's not there. It's there, and it's everywhere in all sorts of industry, just not Bollywood. And I feel that nepotism can peacefully coexist with the fact that if you just don't, if you allow new talents from outside to flourish and encourage them, then there's no problem with nepotism. But if you don't allow that, then there is a problem, and I think that the whole structure of the industry would collapse in some time. What have you said about nepotism?
nepotism while knowing that you are an opinionated and a very talented person? Do you think that nepotism exists? I think this day and age, your talent only makes you survive. I think people who are doing well, who are the industry kids like Ranbir, Varun, Alia, they are brilliantly talented. That's why they're surviving. And probably if you're a star kid, you can get a good launch, but apart from that, it's your own talent which makes you stay there forever. And I think your stakes are also very high. You have more pressure on you if you're a star kid. So I think right now, it doesn't really matter whether you're a star kid or not. That's what I feel. For more Bollywood news, subscribe now to youtube.com/biscuittv. कभी ये सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करती हूँ, लेकिन जो भी सुशांत के साथ हुआ है उसके बारे में मैं सोचना नहीं बंद कर पा रही हूँ. मैं उसके वीडियोस देख रही हूँ बार बार और मेरे दिमाग से ये बात नहीं जा रही है कि ये दुनिया कितनी ज़्यादा फेक है. मतलब लोग कहते हैं कि जब आपके पास पावर होता है, फेम होता है, पैसा होता है तो दुनिया आपके पीछे पीछे होती है, पर इस केस में तो ऐसा भी नहीं था. तो मतलब दुनिया कितनी ज़्यादा फेक है. आप ये वीडियो देखिए. Because you, I know, always only talk about your work. Yeah, because other than that, I'm very boring. Because I'll tell you very, very honestly, I just have 2 friends, and so I have 3 friends now, thankfully. But I just I cannot make friends, not because I don't like people. I really like them, but somehow they don't find my conversations very interesting. And so the first time they'll pretend to be liking me, but then somehow they don't take my calls. So yeah, so I don't have many friends. I know that it takes a lot to be exciting all the time. It takes a lot to make sense all the time, or at least pretend to be to pretend to know your shit, you know what you're saying all the time. So. देखा आपने क्या फायदा है? अभी पूरी दुनिया उठ के उसके बारे में पोस्ट कर रही है. ये दुनिया इतनी फेक है कि चीजें फील नहीं करती है, प्रोसेस नहीं करती है. उसके पहले तो वो लोग सोच रहे होते कि पोस्ट कैसे करें इस चीज के बारे में. ये है आज की दुनिया. अरे यार, पहले चीज को फील तो कर लो. बस दूसरों का वैलिडेशन चाहिए. कोई कुछ अच्छा काम करता है तो इस इंटेंशन से पोस्ट नहीं करता है कि मैं 100 लोगों को इन्फ्लुएंस करूं कि तुम भी जाके अच्छा काम करो. वो इस इंटेंशन से पोस्ट करता है कि भाई देखो मैं अच्छा इंसान हूं और मैं यहाँ ये प्रूव करने आया हूं. ये है सोशल मीडिया. ये है आज की दुनिया. हद है यार. पहले ना इंसान बनो. बहुत इजी होता है ये सब पोस्ट करना कि भाई मेंटल हेल्थ बहुत फैंसी लगता है ना ये वर्ड. अभी सब मेरे को व्हाट्सएप पे सारे फॉरवर्ड्स भेज रहे हैं, नंबर भेज रहे हैं, पता नहीं 2-3 अलग अलग. कल को अगर आप डिस्टर्ब होगे तो क्या वो नंबर पे फोन करोगे और किसी अननोन इंसान से बात करोगे? अभी सब बोल रहे हैं कि हाँ मैं रहूंगा, मैं जब मुझे जिस टाइम पे भी फोन करना है. ये ना मीन करो पहले, फिर लिखो कैप्शंस में. इस जनरेशन के साथ ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है. प्रोसेस नहीं करते हैं जो हो रहा है. कैप्शन के बारे में पहले सोच रहे होते हैं. इंसान पहले बनो, सोशल मीडिया यूजर बाद में. It's sort of happening right now, and one of the stories that's sort of dominating, and I'm just wondering if you're interested in weighing in, is sort of, Karan Kangana, and the sort of back and forth. I said it was very entertaining. Every morning I wake up and it's great bathroom reading. Yeah. It's mudslinging of the worst kind. I don't know Kangana. I know Karan very, very well. Right. I find Kangana very, very entertaining, and that's about it. I don't want to comment on something that looks opportunistic, honestly. Okay. And I believe you are a feminist when you build other people up, when you, especially other women. And all I can say is that I respect the choices that she's made in her career. Very much. Till now, I made a decision when I was very, very young. After my second coffee with Karan, or my first coffee with Karan that happened, was that I would not do mudslinging where other actors and actresses are concerned. Right. Because I would not do it for TRPs, I would not do it for a channel, and I felt like if I have to give an opinion or be opinionated, then it has to be for something that's relevant. Yes. And I don't think dragging someone down or criticizing someone or having this public spat, I find it very distasteful. Right. You can set examples without
washing your dirty linen in public. Again, and not to belabor this, I'll just ask one more thing. But do you I'm very close to Anand Rai. Yeah. I'm very, very close to Swara Bhaskar. Yes. And I'm very close to Karan. And these three people I know are very idealistic and ethical human beings. Right. Anand Rai made a Ranjana with me, where and he's also met Tanu Manu 1 and 2 with Kangana. And if anything, his female protagonists are very, very strong. Yeah. Swara Bhaskar is one of my closest friends. And Karan Johar has only taken me in one film called I Hate Love Stories 9 years back. And if he really was someone who was the flag bearer of nepotism, right, I'm sure he wouldn't have launched 12 directors. Right. So both of them are right in their own way. I Right. just find this argument something that I feel like I don't want to be a part of. Yeah, fair enough. I don't want to comment on because I don't see anything that is worth commenting on. ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने अपने दम पर बगैर किसी वंशवाद के, बगैर किसी बैकग्राउंड के अपना मुकाम बनाया है। जब आप एक प्लेटफॉर्म से कंगना रनावत को बुली करने वाले 3 सेल्फ एंटाइटल लोगों को देखते हैं, जिनमें से एक आपके दोस्त भी हैं, आप कैसा महसूस करते हैं? I'll be honest, I'll tell you this. मैंने ये देखा नहीं है, मैंने इसके बारे में सुना बहुत है, और आई थिंक उस दिन कुछ इनसे भी ये सवाल जवाब हो रहे थे। मेरे हिसाब से ये जो हम क्या कर रहे हैं आजकल, छोटी सी बात को लेकर जो शायद मजाक से शुरू हुई जी, उसको इतना बड़ा बुला लेते हैं डिपेंडिंग ऑन कि मेरा आपका इसका एजेंडा क्या है। तो इम्तियाज का एजेंडा कुछ और, तो उस बात में से कुछ और निकालते हैं, इसमें से कुछ और निकालते हैं। बड़ी बड़ी मोटी मोटी बात ये है, जो जैसे जैसे जिन बातों से खुश है वैसे वैसे उसको करना चाहिए, कहना चाहिए। आप इसी बात को अगर घुमा के बोले, उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो बोल रहे हैं, उधर से देखें तो ये गलत है यार, ये किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। सो वी कैन हैव डिस्कशन ऑन ऑल काउंट्स। आई पर्सनली, क्योंकि हम तीनों के तीनों जो हैं अपनी मेहनत से बढ़े, जैसे आपने कहा, अपनी लगन से आगे बढ़े, इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे अपनी मेहनत और लगन से नहीं बढ़े। हमको एक दूसरे की इज्जत करें, खुशी से बातचीत करें। आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन वी गेट मिसलेड बाय how big a news becomes, though it is not meant to be so big. As a matter of fact, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि आपको ये नहीं लगता कि कई बहुत छोटी बातों को आप लोग बहुत बड़ा बना के बोल देते हो क्योंकि उसमें टीआरपी अच्छी हो जाती है? तो मैं फिल्मों में ऐसा करता हूँ, मैं बड़ा करता हूँ, मैं बेच डालता हूँ हर चीज को कमाल से। बट कैन वी स्टॉप डूइंग दैट इन द न्यूज? Can we come back to the days when news wasn't a viewpoint, wasn't an editorial, was just कि ये हुआ भैया, ये हुआ, आप तय कर लो आपको कैसा लगा। कि मैं उसके, मेरे को तो हर न्यूज अब एडिटोरियल लगती है, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू लगती है, हर डिस्कशन जो है किसी का पॉइंट ऑफ व्यू लगता है, एजेंडा रिटन लगता है। एंड आई एम सॉरी टू हैव टेकन टाइम ऑन दिस, आई वुड लाइक टू सब्सटैंशिएट व्हाट ही इज सेइंग। क्योंकि हम जो करते हैं ना, हम तो फिर भी कहानियां बना रहे हैं, हम तो फिक्शन में बात करते हैं, मगर जो न्यूज है उसको तो हम लिटरली लेना चाहेंगे यार, कि अगर ये कह रहे हैं सज्जन तो ये होगा। हम तो कहानी बता रहे हैं, हम तो झूठ भी बोल सकते हैं। सो आपसे हमें ये जरूर उम्मीद होती है कि एक निष्पक्ष और बगैर एजेंडा रिडन, और अगर आप लोग हमसे बेहतर समझते हैं कि देश में क्या हो रहा है, तो उससे थोड़ा सेंसिटाइज करके you should present, not you. We're very like, I'm personally very impressed by all the questions that you've asked in this interview, including the ones that were controversial. But then accept the controversy yourselves. I would like to tell the media, and we look at you to be all of the things that you expect us to be as film industry. बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शाहरुख, अनुष्का और इम्तियाज। सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक करके प्लीज मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी
और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत एक कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट। Because I don't want to take it. I'm so happy that I have this chance, you know. I'm the most starstruck person in a room always, you know. So I don't want to make it seem, because I've always wanted to be an actor. This has been my dream as well. And I feel like just because my dad's an actor, I'm not going to say no to an opportunity to act, you know. My dad has never been in a Dharma film. He never went on Coffee with Karan. And so, you know, it isn't as easy as people say it is. I think everyone has their own journey and their own struggle. It's like we're almost like blaming them for being born in a family, which is not right. I think everybody has their own struggle. You know? सबका struggle अलग होता है. But difference यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका struggle शुरू होता है. हाँ. ये मतलब obviously you definitely get the pole position. No, yeah, you get to